सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? सर बिल्कुल ठीक। अच्छा, मीटिंग लाइव हो चुकी? यस सर, मीटिंग इज लाइव नाउ। अच्छा, चलें, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते जी श्योर सर। हैं। थैंक यू। थैंक यू। सर टुडे इज आवर लास्ट डे। Yes sir, today is our last day. Today our session will end because it is our sixth week, so That's we are great. going to India. By the way, I want to thank you sir. I learned a lot from you. Inshallah we will do further work on next course. Indeed sir, we learned a lot of new things on the fly. We learned from each other, we learned from others' experiences, so it was amazing. By the way, the session was interactive because it was all about projects. We didn't talk much about theory. We talked about projects. We implemented them uh, in our session. So from very first day, we started implementing the concepts and projects. So that is why it was quite impactful and understandable for us. It was I beneficial for us as well. I really appreciate you the way you take the courses, classes of this course, uh, and the projects you did that are really amazing. And I believe a lot of students have learned a lot from that. I hope so, sir. Actually, it was helpful for me as well because when you start teaching this, you learn how to deliver things and you get to know new things and new concepts while delivering. Because if you know something, you better understand it when you deliver it. So it was quite a powerful and beneficial thing for me delivering the sessions. Of course, And of course. No, no. And It, one more it thing means is that, it means once you cook for others, then you will know how to cook. yes, that was an amazing thing. And one thing more, one thing interesting was that I did all the code here on the fly, like we did, right? So the thing is that when you write code in front of others, you unintentionally make mistakes, right? Of course, of course. So once you start writing code in front of others, so this is where you uh, get to know that you have something in your hand. So you have something under your belt, you can say. So this was an amazing thing. I That is. really appreciate you. Thank you, thank you. You have helped him and supported and guide me along along the journey. So it was really amazing experience working with you. Thank you, sir. Exciting, exciting. Can you suggest me noise canceller because you can hear me some noise from my noise. Yes, sir. Actually, it is a extension. You can say it is an application you can download. It is Crisp, KRISP. So once you install it, you will be canceling all the noise in your background. So whenever I asked that is there any noise in my background, there was the drill machine working beside my wall. So this is that much powerful that noise was even disturbing me while speaking, but it was not affecting the meeting. So it was really very interactive. Of course,
Sir, very shall we beneficial application. start our project because Yes, I sir. think it is time to move on. Uh, e- exactly. Actually, this was the feedback from my side, so I was just winding it up. So Thank let's you. move towards the project, and let me share my screen. So what we did yesterday was that we tried to make a object of our class question. Let me share the screen first. अच्छा, कल जो लास्ट चीज हमने की थी वो ये थी कि हम जो है ना, हमने क्वेश्चन का जो क्लास बनाया था, और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन का डेटा बनाया था, अब उस क्वेश्चन क्लास को यूज करके लेट मी ओपन द क्वेश्चन मॉडल। तो अब ये जो क्वेश्चन का क्लास था ना, इसको यूज करके हम क्या चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। एक तो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम टेक्स्ट, और दूसरा था हमारा आंसर, राइट। Yes. तो अब हमने इनिशियलाइज कर दिया इन दोनों को, और एक को सेट कर दिया टेक्स्ट के साथ, और एक को सेट कर दिया आंसर के साथ। अच्छा, अब ये टेक्स्ट और आंसर कहाँ से आएंगे फिर? ये जो टेक्स्ट और आंसर आएंगे, हम, अच्छा, मैं कल भी आपसे मैं ये चीज पूछ रहा था कि ये टेक्स्ट और आंसर कहाँ से आएंगे फिर, पर आई ये डिडंट गेट एनी आंसर। ये हमने जो डेटा बनाई थी कहाँ से? एग्जैक्टली। तो ये जो डेटा बनाई थी ना हमने, हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट अगर हम इसको गौर से देखें, और इसको गौर से देखें तो इनकी ऑलमोस्ट जो स्पेलिंग है ना वो भी सेम ही है, हमने रखी है। हम सेम रखें या ना रखें वो हम पे डिपेंड करता है, पर हमने इसको सेम रखा है ताकि फ्यूचर में हमें जो है ना आसानी हो, ताकि हम इनको एक्सेस कर पाए, राइट। सर, तो अब सर, हमने क्या किया है, हमने क्या किया है sorry, कि, जी सर। uh, sorry for disturbance. I am asking the Crisp is you need to log in for that for Crisp download Crisp. Yes, Okay, you so have to Crisp. log in first. So the second thing was that, uh, as you can see, this is the class, and these are its, you can say, attributes, right? And this is its initializer. अब ये जो इनिशियलाइजर में ये जो चीज हमने पास की है ना, ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहली जो चीज, जब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद फौरन सबसे पहली जो चीज यहाँ पर यूज होगी, या फिर जो है ना इनिशियलाइज होगी, वो होगा इसका कंस्ट्रक्टर, राइट। Yes. अच्छा, अब ये हम पाइथन की लैंग्वेज में इसको इनिशियलाइजर बोल रहे होते हैं, और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज से यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है तो वो उसको कंस्ट्रक्टर बोल रहा होगा, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में जावा हो गया या फिर सी प्लस प्लस, तो वहां पर इनको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना। तो उसके बाद हमने जो क्विज में एक जो है ना वो फंक्शनलिटी ऐड की थी। अच्छा, वो फंक्शनलिटी क्या थी कि हम सबसे पहले ये देख रहे थे कि क्या क्वेश्चन हैं इस हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट में, राइट। Exactly. अच्छा, अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा? अगर ये जो क्वेश्चन लिस्ट में क्वेश्चन बाकी होंगे ना, तो, या फिर अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, राइट। Yes. तो हम क्या कर रहे थे कि हमारा ऊपर जो हमने सेल्फ डॉट क्वेश्चन नंबर का एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, राइट। तो उसको हम चेक कर रहे थे कि क्या वो जो है क्वेश्चन नंबर वो लेस देन है लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिस्ट के। तो ये जब तक क्वेश्चन नंबर जो होगा ना वो लेस होगा क्वेश्चन लिस्ट की लेंथ से, तब तक Sir, ये जो है ना, ये जो मेथड होगा स्टिल हैज what is- क्वेश्चन, वो कुछ ना yes. कुछ रिटर्न करता रहेगा, स्पिट आउट Exactly. करता रहेगा कुछ ना कुछ। तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला मेथड था, वो एक मेथड बनाया हमने,
उसमें करंट क्वेश्चन को स्टोर किया। अब करंट क्वेश्चन क्या, ये एक वेरिएबल है, ये करंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की लिस्ट में ये जो क्वेश्चन नंबर वेरिएबल होगा ना, इस इंडेक्स पर, ये जो क्वेश्चन लिस्ट है, इस पर क्वेश्चन नंबर की इंडेक्स पर जो क्वेश्चन होगा ना, वो हमें यहाँ से करंट क्वेश्चन में स्टोर हो जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन लिस्ट है और ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये कहाँ से आ रहा है? अब अगर हम यहाँ देखें ना, तो हमारे पास सिंपल एक डेटा लिस्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अब इसको अगर हम प्रिंट कर रहे थे एज इट इज, तो ये प्रिंट हो रहा था हमारे पास इस तरह से कुछ, राइट? तो मतलब जो पहला नंबर था ना, मतलब क्वेश्चन लिस्ट में, डेटा लिस्ट में, जो डेटा की लिस्ट में जो पहली डिक्शनरी थी ना, वो हमारे पास आ रही थी, राइट? हम्म, तो अब हम क्या चाहते थे कि हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट हो। तो अब हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। अब हम वो क्वेश्चन की लिस्ट कहाँ से लाएं? हम ये कर सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन की जो है ना लिस्ट बनाएं। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन बैंक, राइट? और हम इसको बनाएं। अब ये क्वेश्चन लिस्ट जब हमारे पास आ गई, तो अब फॉर नाउ ये जो है ना एम्प्टी होगी ये लिस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो जो भी ऑब्जेक्ट बने वो हमारी जो क्वेश्चन बैंक की जो एम्प्टी लिस्ट बनाई है ना हमने, वो उसमें फिर मतलब ऐड होता जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा नया क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो हमारी इस लिस्ट में, क्वेश्चन बैंक वाली लिस्ट में अपेंड हो जाए। राइट? डज दिस मेक सेंस? यस सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है? जैसे हमने ये क्वेश्चन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर हम देखें, तो इस मतलब क्वेश्चन बैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या फिर क्वेश्चन बैंक में कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो चीज अब कहाँ से पता चलेगी? अच्छा, अब अगर देखें हम गौर से, तो हमारा जो डेटा था वो एक लिस्ट थी, राइट? यस। तो इसमें जो भी आइटम्स पड़े थे, वो इस लिस्ट के आइटम्स थे। मतलब जो पहला आइटम था वो इंडेक्स वन पर पड़ा हुआ है, दूसरा जो है दूसरी इंडेक्स जीरो, इंडेक्स वन पर पड़ा हुआ है, और ये इंडेक्स जीरो पर पड़ा हुआ है, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट्स बनाए ना हमने, वो जो हम क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट बनाए, उनको लूप करें, ताकि जितनी आइटम्स हो ना हमारी डेटा के अंदर, उतने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने, ताकि हर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट हो ना, वो अलग से बन जाए। डज दिस मेक सेंस? जी सर। अच्छा, अब वो किस तरह से बनेगा कि हम लूप चलाते हैं। किसके ऊपर लूप चलाएंगे? अब लूप चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किस चीज के ऊपर लूप चलाएंगे हम? गेस करें कोई। सर लिस्ट पे हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें उसमें कितने आइटम्स हैं हमारे पास। तो वो कहाँ से आएगा? वो डेटा से, जो क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन नंबर। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो डेटा आएगा ना, मतलब वो जो लिस्ट यूज करेंगे हम, वो करेंगे क्वेश्चन डेटा, क्योंकि अगर हम डेटा डॉट पाई में देखें, तो ये क्वेश्चन डेटा का लिस्ट है, राइट? तो अब हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन डेटा के ऊपर इटरेट करना है हमें। अच्छा, अब इटरेट कहाँ तक करना है? मतलब सारे आइटम्स पर। तो हर एक आइटम पर हमें इटरेट करना है, राइट? फॉर ईच क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें फिर इटरेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हम इसको इटरेट करना चाहते हैं, तो ईच क्वेश्चन ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एक कीवर्ड मिस किया है इन क्वेश्चन।
तो हम कह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन डेटा पर इटरेट करें, और उसके बाद क्या करें कि आप हर एक क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, राइट। तो अब वो किस तरह से बनेगा, हम क्या करते हैं कि पहले हम टेक्स्ट का जो है ना ट्रैक रख लेते हैं कि हमारा जो डेटा था ना, क्वेश्चन डेटा, उसमें एक, अगर हम इस डिक्शनरी को ओपन करें ना, तो इसमें एक टेक्स्ट के नाम से की है और एक आंसर के नाम से की है। और अगर हम अपने क्वेश्चन मॉडल को देखें, तब भी हमारा जो वेरिएबल था एक टेक्स्ट था और दूसरा आंसर था। तो इस क्वेश्चन को देने के लिए जब हम इस क्वेश्चन को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तब हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक टेक्स्ट की और एक आंसर की, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ट्रैक का जो है ना टेक्स्ट का ट्रैक रख लेते हैं, और उसमें स्टोर क्या चीज करेंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा ना, उस क्वेश्चन में जो हमारा टेक्स्ट होगा। अब हर एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि हर एक क्वेश्चन जो होगा, हर एक क्वेश्चन डेटा से आएगा और वो एक की होगी, राइट, टेक्स्ट। और जब हम की को एक्सेस करते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है ना, वो इसमें स्टोर कर लेते हैं, राइट। और यस सर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक आंसर का वेरिएबल रख लेते हैं, और आंसर वो कहाँ से आए, वो भी हर एक क्वेश्चन का जो यू कैन से आंसर होगा ना, वो यहाँ पर इस आंसर में स्टोर होगा, राइट। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ न्यू क्वेश्चन, आप कोई भी दे सकते हैं अपनी चॉइस का। तो अब आप मुझे हेल्प करें कि मैं इसको क्या रखूं, किस तरह से मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं और किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाऊं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम जो न्यू क्वेश्चन वहाँ पे आइटरेट करें उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। अच्छा, देखिए ये जो क्वेश्चन का क्लास बनाया था ना हमने, अभी इसको यूज नहीं किया, तो हम इसको यूज करना चाहते हैं ना। हम्म। समझ गए। अच्छा, अब क्वेश्चन को तभी यूज कर पाएंगे जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, और अगर यहाँ पर आप सिंपली इसके ऊपर होवर ओवर करेंगे ना, तो ये आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन क्लास है, और आपसे ये दो चीजें मांगेगा, एक टेक्स्ट और एक आंसर। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो हमने टेक्स्ट का ऊपर वेरिएबल बनाया ना, वो एक दे देते हैं, और दूसरा दे देते हैं हमने जो ऊपर आंसर का एक वेरिएबल बनाया था वो, राइट। अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्ट है, न्यू क्वेश्चन जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट तब तक बनते रहेंगे जब तक क्वेश्चन डेटा में क्वेश्चंस होंगे। मतलब क्वेश्चन डेटा जो हमारा यहाँ पर एक लिस्ट था, यस सर। जब तक इसमें क्वेश्चन होंगे, तब तक ये ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे, राइट। और अब हम क्या करते हैं कि हम इस न्यू क्वेश्चन को है ना अपेंड कर देते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अगर हम ऐसा कर लें कि क्वेश्चन बैंक डॉट अपेंड करके, और इसमें ऐड क्या कर दें, न्यू क्वेश्चन, राइट। अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं और इसको एज इट इज अगर रन करें, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं कि इसमें अब क्या चीज है। चलिए। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक क्वेश्चंस अच्छा, एम्प्टी मजे नहीं की होते। बात, अब मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी एस्टिमेशन लगाए कि इस बैंक में क्या चीज होगी, क्वेश्चन बैंक में। मतलब अगर हम प्रिंट करें तो क्या चीज प्रिंट होगी, क्या समझते हैं क्वेश्चन बैंक में आई थिंक लेंथ है ना उसकी, जो डेटा की है। आप, एनीवन एल्स। देखिए, जब हम ये कोई न्यू क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, तो इसमें
इसमें हम क्या कर रहे थे कि इसमें स्टोर कर रहे थे जो ऑब्जेक्ट बन रहा था इस क्वेश्चन क्लास में से। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, अब अभी के लिए हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अगर हम इसको एज इट इज रन करेंगे ना, तो यहाँ हमारा जितना जितनी लेंथ होगी ना क्वेश्चन डेटा की, ये आई गेस 15 क्वेश्चन होंगे। तो ये 15 क्वेश्चंस के 15 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं ना। ये देखें, अब ये हमें बता रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। मतलब हर एक चीज के लिए ये हमें बता रहा है कि पहला जो था क्वेश्चन मॉडल डॉट क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है, ये मेमोरी में इस जगह पर स्टोर हुआ पड़ा है। ठीक है, और दूसरा भी क्वेश्चन मॉडल का ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पर स्टोर हुआ पड़ा है। तो इसी तरह से जितने क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन डेटा में, उतने ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे और वो स्टोर हो जाएंगे मेमोरी में, राइट। Yes, sir. अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो क्विज ब्रेन की जो फंक्शनलिटी थी ना, हमने बनाई भी थी, वो हमने अभी तक यूज नहीं की। उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे मेन डॉट पाई फाइल में क्या करते हैं कि क्विज ब्रेन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि आप तब तक उसको उस क्लास को यूज नहीं कर सकते जब तक उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते, राइट। तो जैसे ही हमने इसको क्विज ब्रेन का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये बन गया। अच्छा, अब जैसे इसके ऊपर होवर ओवर करते हैं ना, ये हमें बताता है कि इसमें एक जो पैरामीटर है ना वो मिसिंग है। मतलब एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। जो पैरामीटर आपने इनिशियलाइज किया था उसका आर्ग्यूमेंट, मतलब एक्चुअल डेटा मिसिंग है। वो डेटा क्या चीज है? वो आपसे क्वेश्चन की लिस्ट मांग रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या चीज आएगी, मतलब कौन सी इसको हम लिस्ट पास करें ताकि वो फंक्शनलिटी करना शुरू कर दे क्वेश्चन ब्रेन, क्विज ब्रेन वाली। अच्छा, अब अगर ऊपर देखें क्विज ब्रेन को, तो इसमें जब क्वेश्चन लिस्ट हमने दी थी, तब हमने क्या किया था कि जो सारा काम था ना क्वेश्चन लिस्ट से ले रहे थे हम, कि क्वेश्चन लिस्ट डॉट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिस्ट डॉट डॉट टेक्स्ट, ये सारी चीजें कर रहे थे हम, राइट। Yes, sir. तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन डॉट पाई फाइल है ना, उसमें अगर हम देखें, तो इस तरह की क्वेश्चन लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर बनी पड़ी है क्वेश्चन बैंक की। और हमने इसको देख भी लिया था कि इसमें जितनी लेंथ ऑफ डेटा क्वेश्चन डेटा थी, उतने ऑब्जेक्ट्स स्टोर हुए पड़े हैं, राइट। तो अगर हम क्विज ब्रेन में ये पास करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अ, अच्छा, अब आप क्या समझते हैं अगर हम इसको मतलब एज इट इज रन करें तो क्या होगा? अच्छा, सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि ये जो मेथड है, ये वाला, इसको क्या हम एक्सेस कर पाते हैं? हम सिंपल ये देख लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि हम करते हैं क्विज ब्रेन, क्विज ब्रेन डॉट टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई भी पैरामीटर नहीं मांगता, तो हम इसको एज इट इज रन कर लेते हैं। तो अगर हम इसको एज इट इज रन करते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। और हम अगर इसको ट्रू करते हैं, दैट्स राइट राइट आंसर, ये हमें अपना स्कोर भी बता रहा है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अगर हम अपना वो जो क्विज देखें, अगर जो पिछला हमारा क्विज था जो हमने सेट किया था ना, प्रोजेक्ट, उसमें क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 था, और उसके बाद स्कोर भी आ रहा था कि 1/1 और 1/2। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास एक चीज मिसिंग है। वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 0 बता रहा है हमें, मतलब इंडेक्स 0 से शुरू हो रही है।
अगर हम लॉजिकली इसको देखें तो ये चीज कहीं से लॉजिकल नहीं लग रही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को सेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हमें आना पड़ेगा क्विज में। ठीक है, हमने अपना जो क्लास बनाया था क्विज ब्रेन का। अच्छा, अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो फंक्शनलिटी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मतलब क्वेश्चन नंबर की ये यहाँ पर हो रही है, राइट? जहाँ पर ये जो क्वेश्चन और उसके बाद सेल्फ डॉट क्वेश्चन नंबर आ रहा है। अगर हम क्या करें, हम दो चीजें कर सकते हैं, राइट? एक चीज क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें, जब हम यहाँ पर स्कोर काउंट कर रहे हैं ना, तो वहां पर इसको अपडेट कर दें। पर अगर यहाँ पर हम इसको अपडेट करेंगे तो ये जो चेक आंसर का मेथड है ना, ये उस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, फिर ये क्वेश्चन नंबर के साथ साथ क्वेश्चन नंबर मतलब अपडेट तो होगा, फिर वो उसको उसमें जो क्वेश्चन होगा ना हमारा, वो भी उस नंबर के अकॉर्डिंग देगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर होगा अगर 1, तो वो इंडेक्स 1 को एक्सेस करेगा, राइट, ना कि इंडेक्स 0 को। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज से बचने के लिए, हम जब ये सारी चीजें भी हो जाए और ये चीज भी हो जाए, करंट क्वेश्चन भी हो जाए, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम क्या करें कि इस क्वेश्चन करंट क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, उसमें फिर एक इंक्रीमेंट कर दें, ताकि क्या हो कि जब हमारा हमारा ये क्वेश्चन एक्सेस हो जाए, उसके बाद जब ये चीज प्रिंट हो ना, तब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 हो जाए। मतलब प्रिंट होने के टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो, बाकी जो भी चीज हो हमारे पास वो क्वेश्चन मतलब वो उसका एक्चुअल नंबर एक्सेस करे, और यहाँ प्रिंट करते वक्त उसको देखे कि ये क्या चीज, मतलब उसमें एक इंक्रीमेंट कर दे, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस इंस्टेंस को, क्वेश्चन नंबर का जो था, उसको उसमें एक ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं और उसके बाद फौरन जाकर अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारे पास अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। डज दिस मेक सेंस? यस सर, मेरी आवाज अच्छा, आ रही? जी सर, बिल्कुल। आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी एंड पर नॉइज भी कैंसिल हो चुका है। यस। आई एम ग्लैड यू डिड इट सर, थैंक यू। अच्छा, और अगर जैसे हम इसको ट्रू करें तो इंटर करने के बाद झट से जो है ना हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, पर ये हमें बताएगा कि आपका जो आंसर था ना वो राइट था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था मेरे जहन में जो मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूं कि यहाँ पर, मतलब मैं क्वेश्चन इसको खोल लेता हूँ। तो मैंने मैंने जैसे यहाँ पर ट्रू इंटर किया ना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रू और फॉल्स, और दोनों ये जो कैपिटलाइज्ड कैरेक्टर्स है, और मैंने लोअर कैरेक्टर एंटर किया पहला। ठीक है, तो जैसे मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद ये मेरे पास करेक्ट आंसर बता रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि ये टी और ये टी इक्वल नहीं है, तो ये इसको एरर देना चाहिए था। तो ये क्यों इसने करेक्ट बताया? पहले लोअर कर दिया है ना वहाँ पे जो करेक्ट आंसर जी, ऐसा ही है बता दिया। बिल्कुल। इस मेथड की वजह से है, ये जो मेथड हमने यूज किया है, इसकी वजह से इसने जो है ना जाकर इसको दोनों को लोअर कंसीडर किया और कंपैरिजन किया। अगर आप यहाँ पर सारे के सारे कैपिटल लेटर्स लगाएंगे तब भी आपको ये लोअर करके उसके बाद भी क्वेश्चन का आंसर सही बताएगा, राइट? अब ये हो चुकी हमारे पास फंक्शनलिटी, मतलब हम चेकआउट भी कर रहे हैं और ये भी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम
इसको गौर से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हो रहा है, राइट? अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी कि जब तक हमारे क्वेश्चन डेटा में क्वेश्चंस बाकी हैं, तब तक हमारा लूप चलता रहे, और तब तक हम हमसे जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाएं। और वंस हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, तब हमारे पास जो है ना फिर वो एंड हो जाए और वो आपको बताए कि आपकी क्वेज कंप्लीट हो चुकी है, राइट? तो वो किस तरह से करें हम फिर? एनी आइडियाज? क्वेश्चन अच्छा, रिपीट करें। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं कि जब 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 हमें ना पता हो कि ये चीज या फिर ये जो टास्क हम परफॉर्म करने वाले हैं, वो कितनी टाइम चलेगा, तब हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? फाइल लूप एग्जैक्टली। लगा दें। जी, वाइल लूप लगाते हैं, राइट? तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम गौर से देखें तो हमने एक चीज की थी अपने क्विज ब्रेन के इस क्लास में, राइट? अगर हम इसको गौर से देखें तो वो क्या चीज थी जो हमें बता सकती है कि अभी इसमें क्वेश्चंस बाकी हैं हमारे क्विज? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, उसमें आप भी अपना कोई टास्क करें या आप भी अपने हिस्से का काम करें। जैसे सर बोलते हैं ना, अपने हिस्से की क्षमा जला दे, तो वो क्षमा जलाइए। और इसीलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो 1 सेकंड लगना था ये चीज करने के लिए। आप अगर कर सकते हैं तो, या फिर आपको क्वेश्चन है तो वो पूछे कि किस तरह से करेंगे हम, तो मैं आंसर कर देता हूँ आपको। फिर वो चीज जी आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी। जी सर, आप रिपीट करिएगा, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो व्हाइल लूप है ना, वो किस तरह से हम मतलब उसकी फंक्शनैलिटी कहाँ से लाएंगे कि वो जो लूप है उसको पता चले कि अब स्टार्ट होना है और अब एंड होना है। मतलब हमने अपने क्विज ब्रेन के क्लास में ऐसी क्या चीज की है जो हमारे लूप को बताएगी कि अब आपने एंड होना है? जो हमने क्वेश्चन नंबर इनिशियलाइज किया है, अगर वो क्वेश्चन नंबर फाइनल हो जाए, मतलब कि लिस्ट, मतलब जो हमने लिस्ट बनाई थी डेटा से, वहां से अ, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो वहां तक इन कर दे। ग्रेट। मैम, आप अगर अपना इनपुट देना चाहें, यू कैन टाइप अ मैसेज इफ यू कैन, इफ यू कांट स्पीक। अच्छा चले, मैम का मैसेज आएगा, यस, स्टिल है इस क्वेश्चन। जी, तो यही चीज़ थी जो हमें बता सकती है कि अभी आपका जो लूप है वो कहाँ स्टार्ट और कहाँ तक चलना चाहिए, राइट? क्योंकि ये चीज़ जो होगी ना, स्टिल हैज़ क्वेश्चन, ये हमें बताएगा कि अब जो क्वेश्चन नंबर है ना वो आपका कहाँ पहुंचा है, और आपके क्वेश्चन डेटा जो था उसमें बाकी क्वेश्चंस हैं या नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मेन डॉट पाई फाइल में एक ये चीज़ कर सकते हैं कि हम एक फ्लैग कर लें। वो फ्लैग क्या हो सकता है, फ्लैग ऑन कर लें कि पहले हम इसको बताते हैं कि इस गेम ओवर, राइट? आप कोई सा भी रख सकते हैं ना, आपने इस क्विज ओवर कर सकते हैं आप, अगर करना चाहें तो। ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हैं पाल्स के साथ। अच्छा, ये हमने फाल्स कर दिया इसको, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं कि जब तक वाइल क्विज ब्रेन जो था ना हमारा,
क्विज ब्रेन, उसमें एक मेथड था हमारा स्टिल हैज क्वेश्चन। ये जब तक चलता रहता है ना, तब तक आप इसको चलाते रहे, और तब तक आप क्या करें, एक एक्टिविटी परफॉर्म करें जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विज ब्रेन डॉट नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये लूप स्टार्ट होगा और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये देखेगा स्टिल हैज क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई ना कोई चीज रिटर्न करेगा। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये रिटर्न कर रहा है, राइट। अब इनका जो आंसर होगा ना, वो ये रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब हम दो चीजें कर सकते थे। एक ये कि एक इफ और एल्स की स्टेटमेंट चलाते कि इफ क्वेश्चन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू क्वेश्चन लिस्ट। मतलब मैं लिख लेता हूँ इसको, मतलब ये और ये सेम चीज है। हम ऐसा करते हैं कि इफ सेल्फ डॉट क्वेश्चन नाउ, और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि लेस देन लेन ऑफ सेल्फ डॉट क्वेश्चन लिस्ट, राइट। और हम उसके बाद उसको क्या करते कि इसको कर देते रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम क्या करें, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप एल्स करें, और एल्स में क्या कर लें कि आप जो है ना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, दिस इज वर्किंग सेम एज दिस वन, रिटर्न। अभी जो रिटर्न है ना, वो भी ये सेम चीज कर रहा है, ये वाली। तो ये किस तरह से कर रहा है कि देखें, अब ये चेक कर रहा है कि क्या ये जो क्वेश्चन नंबर जो है वो लेस देन लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिस्ट है। तो इससे जरूर कोई चीज, अब जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी ना, या तो ये ट्रू करेगी रिटर्न, मतलब ये ट्रू देता है आंसर, या तो फॉल्स देता है, राइट। अब वो जो ट्रू या फॉल्स आएगा ना, वो डायरेक्टली हमारा रिटर्न हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मैन्युअली या फिर ब्रूट फोर्सली इसको रिटर्न करवा रहे थे ट्रू को, यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइजली इसको कर लिया रिटर्न, राइट। तो ये दोनों सेम चीज है, मतलब तो एक चीज को लिखने के दो तरीके हैं। तो आप कोई भी तरीका इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने का। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको, जब हमारा क्विज ब्रेन जब तक चलता है, और अगर हम इसको एज इट इज रन करें, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? अच्छा, चले इसको हम रन कर लेते हैं ना एज इट इज। दैट्स द राइट आंसर। और अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या इसको सिलेक्ट करूं? एनीवन एल्स? आप सुन सकते हैं हमसे? इमारत, सर आई कांट हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग। Yes, sir, you are audible. जी, तो इसमें क्या ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या हम करें, ट्रू False, करें, फॉल्स करें? false. चलिए फॉल्स कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट, करेक्ट आंसर यही था। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना, हम इसको क्या करते हैं कि अ, हम देते चले जाते हैं ना, और देखते हैं हम क्या हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या होता है। तो 7 आए हैं अभी, मैं ट्रू ही कर रहा हूँ सबको, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या हुआ, ये फ्लोटिंग विंडो है मेरे पास मीटिंग की। अच्छा, अब अगर देखें तो ये जब
मतलब क्विज कंप्लीट हुई ना, 15 के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जब, तब हमारे पास मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जो पहले चीज आ रही थी ना, दैट्स द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर वाज ट्रू। तो अब ये एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था जो पीछे चला आ रहा था। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक कोई रीजनेबल वो जो आउटपुट होती है ना, वो नहीं आई। जैसे कि हमें पता चलता कि भाई अभी हमारी कोई एंड हो चुकी है, या फिर वी आर आउट ऑफ क्वेश्चन, या ऐसी कोई चीज। तो वो चीज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। उसको हम किस तरह से कर सकते हैं? दूसरा ये कि जो हमने ऊपर आंसर बता रहा था हमारा भाई, 5 आउट ऑफ 7, फिर 6 आउट ऑफ 9, हम्म। वहां पे नंबर तो सीरीज दे रहा था, बट ये क्यों, मतलब कि मेरे मैंने 15 आउट ऑफ 11 दे, मतलब जितने मैंने सही किए वही दिए। अच्छा, वो सारे जितने आपने सही किए होंगे वही देखा है गेस। चलो ठीक है सर। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ फाइनल कि फाइनल हम, नोट देना चाह रहे हैं कि जब हमारा जी जो है ना। जी, हम इसको किस तरह से बताएं कि अब आपकी जो वो जो क्विज थी ना वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके पास एक मैसेज आ जाए कि नाउ द क्विज इज ओवर। वो चीज कहाँ पर ऐड करें हम? लूप में मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से वो देखेगा कि क्वेश्चन बैंक में कुछ अ, ये क्वेश्चन एंड हो गया, तो वहाँ पे जब जैसे ही वो एंड हो गया, तो जब लूप ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद। राइट, यही चीज थी कि जब लूप ओवर होगा ना, वाइल लूप, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रिंट कर सकते हैं कि योर क्विज इज ओवर, राइट। तो इस तरह का कोई मैसेज आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम 15 क्वेश्चंस टाइप नहीं करते, हम दो करते हैं, बाकी सबको कर देते हैं कमेंट, और सेव करके इसको रन करते हैं, राइट, एज वी आर प्रोग्रामर्स। तो हम क्या कर देते हैं कि हम कर देते हैं ट्रू, और इसको भी कर देते हैं ट्रू, योर क्विज इज ओवर। अच्छा, अब ये चीज हो चुकी है। अब ये ये देखें आप, योर क्विज इज ओवर, ये कोई मतलब कोई जो है ना एक रीजनेबल अभी भी हमारे पास चीज नहीं आ रही कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये कर लिया कि आपके पास करेक्ट आंसर वाज ये। तो ये चीज हम क्या करें, इसको किस तरह से करें कि हमें ये बताए कि आपका फाइनल जो स्कोर था ना वो भी आपके पास आ जाए? वो चीज हम कहाँ कर सकते हैं? अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको एफ स्ट्रिंग करें, और हम इसको एफ स्ट्रिंग करें, और जब ये गेम ओवर बताए ना, तो हम इसको एक और चीज बता सकते हैं कि योर फाइनल स्कोर इस, और इसको हम एक और चीज बता सकते हैं कि आप क्या करें, क्विज ब्रेन में जाएं, और कहाँ गया क्विज ब्रेन? जी, क्विज ब्रेन में जाएं, और उसके बाद क्या करें कि उसमें एक स्कोर के नाम से चीज है, उसको जो है ना आप एक्सेस करके लाएं। तो क्या समझते हैं आप, ये हो जाएगा अगर हम इसको रन करें ऐसे टेस्ट? तो चलें इसको करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहला ट्रू करते हैं और दूसरा फॉल्स करते हैं। अच्छा, अब ये चीज थी कि हमारे पास यहाँ पर स्कोर कुछ इस तरह से आ रहा था, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग सिर्फ 2 है। तो हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो फाइनल स्कोर है ना वो आ जाए। तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं? अब हम क्या करें फिर? उसका नंबर भी देंगे और स्कोर को भी अपेंड करें। जी सर, आई कुडंट हियर यू।
मतलब मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर भी वहाँ ऐड करेंगे हम, और उसके अलावा स्कोर। अच्छा, कुछ इस तरह से सर। क्वेश्चन नंबर, राइट। यस सर। तो अब हम कर लेते हैं इसको, कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसको हम कर लेते हैं ट्रू, और दूसरे को कर लेते हैं फाल्स। तो हमारे पास ये भी आ गया कि आपका क्वेश्चन करेक्ट जो आंसर था वो फाल्स था, और आपका जो फाइनल स्कोर है वो है ये। और अगर आप इसको और भी थोड़ा इससे थोड़ा मतलब विजिबल बनाना चाहते हैं और इसको अलग करना चाहते हैं सबसे, तो आप एक प्रिंट की खाली एक जो है ना लाइन कर दें प्रिंट, और उसके बाद इसको ऐसे ही कर दें। तो ये आपको बताता है कि आपका जो पहला आंसर था वो करेक्ट था, आपका स्कोर 1/1 बन गया, और जो आपका दूसरा आंसर था वो था रॉन्ग। अच्छा, अब जब दूसरा आंसर, अब हमारी जो एप्लीकेशन थी ना वहाँ, अ, उसको अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर हमें रॉन्ग आंसर बता रहा था ना, तो वहाँ पर भी हमें बता रहा था कि आपका स्कोर कितना है। तो इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं और कहाँ सेट कर सकते हैं? बेसिकली हमारी जो फंक्शनलिटी है पूरी वो क्विज़ ब्रेन में ही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब। तो इसको किस तरह से करें हम? और किस चीज़ को यहाँ पर लिखें कि हमारे पास राइट ये जो बता रहा था क्वेश्चन वो दिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन वाला जो था ना स्कोर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर, उन दोनों को यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम इसको एज इट इज करेंगे तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि ये एफ स्ट्रिंग नहीं है। जैसे हम इसको एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अगर हम इसको अब रन कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही? आई थिंक सर के पास नेट का इशू हो तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर में, अगर नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं।
आई थिंक सर के पास लाइट चली गई होगी, तो उसकी वजह से मुश्किल आ पाए वो। वैसे भी हमारे पास अभी 8 मिनट हैं, तो कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज वेलकम। आज हमारा लास्ट डे था, तो हमारे 6 वीक्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने तकरीबन पाइथन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को देखा। बट अगेन कुछ चीज़ें एडवांस रह रही थी, बट ड्यू टू लाइक ऑफ मतलब कुछ आइडियाज कम थी, तो इस वजह से हम यहीं पे इसको एंड करें। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोर्स में मिलते हैं। और इन फ्यूचर वी गोइंग टू स्टार्ट अनदर कोर्स। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कुछ भी कोई ऐड करना चाहे तो प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। मैम सवेना, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को मैं इन करता हूँ इंशाल्लाह। Yes, ma'am. Thank you for your kind words and encouragement. Actually, because we aim for more than to do lot of work for an advancement, but the participants are very low and like of interested. So that's why we are being here. But we thought we will take this course for next 7 weeks further. But again, inshallah, we will go for next session, another session, and are multiple sessions are running currently at iCode Guru for Python beginners. So if anyone wants to join further, he can join. He or she can join. So thank you, Allah Hafiz. Or any question for regarding, you can ask our select channel. Any queries or any मतलब के और जो कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे।